আব্দুল আলী অনি বলছি আলিস ব্লক থেকে। তো আজকে হচ্ছে 27 তারিখ। আমরা দিল্লি পাহাড়গঞ্জ থেকে যাচ্ছি আগ্রায় আমরা তাজমহল সহ কিছু স্পট ঘুরবো। তো ঘোরার আগে সর্বপ্রথম আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিই, আপনারা যারা দিল্লি থেকে বা পাহাড়গঞ্জ থেকে যাচ্ছেন, এখানে অনেক ট্রাভেল এজেন্সি আছে, বাসে যাইতে পারেন। আপনারা এই যে দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন আছে একটু সামনেই, এখান থেকে ট্রেনেও যেতে পারেন। কিন্তু আমরা যাচ্ছি এই যে আমাদের এখানে এক দাদা আছে বাংলাদেশি, ওনার মাধ্যমে ওনার এজেন্সির নাম হচ্ছে বাংলাদেশ পর্যটন সহায়তা কেন্দ্র। আপনারা যারা আসবেন অবশ্যই তাদের মাধ্যমে যাইতে পারেন। ওনারা এসি এবং নন এসি বাস, প্রাইভেট কার যে কোনো মাধ্যমে আগ্রা আপনাদেরকে পৌঁছায় দেবে। একটু দাদাদের এজেন্সিটা যদি দেখাই, এই যে দাদা আছে, দাদা খুবই ভালো মানুষ, আমাদেরকে খুব হেল্প করতেছে। আর এই ওনাদের এজেন্সি, আপনারা যারা আসবেন অবশ্যই আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব, লোকেশন দিয়ে দিব, মনে করে আসতে পারবেন। এই যে হচ্ছে দিল্লি বাংলাদেশ পর্যটন সহায়তা কেন্দ্র, এটা ঠিক নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের গেটের একটু সামনে আসলে আপনারা পাবেন। এখান থেকে যে কোনো প্রকার সহযোগিতা, এই যে ওনারা ট্রেন টিকিট, তারপর আপনার এয়ার টিকিট, বাস টিকিট, গাড়ির টিকিট সব কিছু করে, ঠিক আছে। এরপরে যদি আপনারা চান যে টাকা শর্ট পড়ছে, বিকাশে বাংলাদেশ থেকে টাকা আনবেন, সেই সুবিধাও কিন্তু আপনাদের আছে, যে বিকাশ থেকে টাকা আনতে পারবেন। হচ্ছে আমাদের বাস। এখন বাজে 6:55 সকাল। এখন আমাদের বাস ছেড়ে দিচ্ছে। দেখা যাক আমরা দিল্লি থেকে আগ্রায় যেতে কতক্ষণ সময় লাগে। আমাদের গাড়ি অনেক সকালবেলা বের হয়েছে, এখন 30 মিনিটের ব্রেক দিচ্ছে একটা ধাবাতে। আমরা যাচ্ছি আগ্রা তাজমহল। অনেক রোদ, অনেক গরম এখানে। গাড়ি থেকে বের হওয়ার পরেই মনে হচ্ছে কেড়ে আগুন। আরো সম্ভবত 2 ঘন্টা লাগবে, অনেক সময়। এখন বাজে 12টা, আমরা সেই সকাল 6টায় বের হয়েছি। এইমাত্র আমরা আসছি আগ্রা ফোর্টের সামনে। আমরা আগ্রা ফোর্ট ঘুরে তারপর এখান থেকে আমরা তাজমহল যাব। তো আগ্রা ফোর্ট অনেক বড়, আমার ক্যামেরা হয়তো বা ধরা যাচ্ছে না পুরোটা। তো আমাদের গাইড আসবে, এখন আমাদেরকে টিকিট দেবে, যে আমরা অনেকজন আছি। গাইড আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব, এরপরে দেখা যাক আগ্রা ফোর্টের ভিতরে কি আছে। आप सभी का आगरा किला में स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। तो ये आगरा किला है, ना कि लाल किला दिल्ली में से। तो ये किला से 2.5 किलोमीटर एरिया में बना हुआ विशाल किला है। इसका 75% एरिया भारतीय सेना से कवर्ड है। 25% एरिया आप घूमेंगे, विजिट करेंगे। तो इस किले को सबसे पहले सन 1565 में अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया। 8 ईयर वर्क अकबर ने कराया। उसके बाद उनके बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बेटे औरंगजेब, तो ये 4 राजाओं ने पूरा किला 95 साल में कंप्लीट किया। इसको बनाने में खर्चा हुआ 35 लाख रुपए का, आज से 500 साल पहले। तो देखो सर, इस किले के 3 मेन एंट्रेंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और आगे थर्ड। ये तीनों गेट सीधा नहीं है, देखो ये जिगजैग बने हुए टेढ़े मेढ़े, क्यों? जिससे कोई भी दुश्मन डायरेक्टली स्पोर्ट में एंटर ना हो सके, दुश्मन की स्पीड को कम करने के लिए। ठीक है, अपने पैरों के नीचे देखो स्टोन पर लाइनिंग है। ये डिजाइन डेकोरेशन नहीं है। उस जमाने में जब राजा लोग हाथी घोड़ों की सवारी करते थे, तो उनके घोड़ों के पैर स्लिप ना हो, इसलिए ग्रिप दिया। ये जो सेकंड गेट है ना, सेकंड गेट, इसको नौबत खाना कहते हैं। जब राजा लोग बाहर से अंदर की ओर आते थे, तो उनके वेलकम्स के लिए गेट के अंदर में ड्रम्स रखते थे, नगाड़े से, ढोल। ठीक है, ऊपर में जो बालकनी है, वहाँ उनकी दासियां फूल वर्षा करने के लिए खड़ी होती थी। तो सामने जो रेड आर्चेस बने हुए हैं, यहाँ उनके सैनिक उनको सलामी देने के लिए खड़े होते थे, यानी रॉयल वेलकम्स होता था सर राजाओं का। ठीक है, आइए सर। আমরা গাইড থেকে যা শুনলাম, এখন ভিতরের দিকে যাচ্ছি।
অনেক সুন্দর মোগলদের কারুকার্য তো। तो देखो सर, अभी आपने 3 गेट क्रॉस किए, उसके बाद फिर उन्होंने ये स्लोप बनाया। ये क्यों बनाया? बाय द वे कोई भी दुश्मन बाहर से अंदर की ओर आता है तो अंदर उसको रोकने के लिए सामने वाले गेट से बड़े बड़े गोल हैवी रोलर स्टोन छोड़े जाते थे। ठीक है, अभी आप देखो ये दीवारों में दोनों साइड में नाली है, यहाँ से दुश्मनों को घायल करने के लिए हॉट ऑयल और हॉट वाटर, गर्म तेल गर्म पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ एक साउंड रहता है, सुनेंगे आप, इको हो रहा है। बाय द वे कोई भी दुश्मन चोरी चुपके अंदर आता है तो उनके पैरों के आवाज से जो अंदर सेना होता था वो अलर्ट हो जाता था। ठीक है, ये 500 साल पुराना सीसीटीवी कैमरा है। किले का मतलब होता है सुरक्षा, तो ये सुरक्षा रहती थी। ताजमहल अभी आप देखेंगे, क्या देखें, केवल कब्र शाहजहां और मुमताज का। ठीक है, ये 4 किंग जनरेशन का लिविंग एरिया, उनका फर्स्ट कैपिटल है आगरा किला सर। ठीक है, आओ साहब, ऐसे धीरे धीरे आ जाओ सर, सभी लोग दिल्ली ट्रेवल। वीडियो कर दो। 55% एरिया इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड है। ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ इंडियन आर्मी रहती है। मुगल समय मुगल आर्मी, ब्रिटिश समय ब्रिटिश आर्मी, अभी इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडियन आर्मी। उसके अंदर ऐसे पार्ट नहीं है जैसे आप लोग घूमने जा रहे हो। वहाँ केवल सेना, हाथी घोड़े, हथियार रखने का एरिया, इसलिए उसको आर्मी को दे रखा है, क्योंकि आगरा ब्रिटिश टाइम का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है। तो यहाँ आर्मी का कई कोर है। ठीक है, तो उनका बैरक्स बना दिया गया है यहाँ। ठीक है, और ये देखें आप सभी लोग, ये मिडिल में देखिए रेलिंग के अंदर व्हाइट स्टोन रखा हुआ, राउंड शेप में दिखाई दे रहा है सभी को सामने। ये जो स्टोन है ना, ये स्टोन 5 फीट गहरा है, 5 फीट डीप और 3000 kg वेट है। और इसमें अंदर बार में गोल्ड प्लेटेड था ये। ठीक है, ये जहांगीर का बाथ टब था, बाथ टब। ये जहांगीर को उनके मामा मान सिंह ने भेंट किया था हीरे जवाहरात भरकर सर। क्योंकि ये जो फोर्ट आप विजिट करने जा रहे हो, ये जोधाबाई का ससुराल है। इनका मायका था आमेर, जयपुर। तो अकबर के साथ विवाह होकर जोधाबाई फर्स्ट टाइम यहीं आई थी। तो उनके भाई थे मान सिंह, उन्होंने अपने भांजे जहांगीर को भेंट किया था सर, हीरे जवाहरात भरकर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें अंदर बाहर में गोल्ड प्लेटेड था। 1761 में जाट किंग सूरजमल ने अटैक किया, गोल्ड को निकाला, बाथटब को यहाँ छोड़ा गया था। ठीक है, इस किले में सर 2 प्रकार के स्टोनों की बिल्डिंग है। एक है रेड सैंड स्टोन, दूसरा है व्हाइट मार्बल। रेड सैंड स्टोन को बिल्ड किया अकबर और उनके बेटे जहांगीर ने। ये लाल बलुआ पत्थर आगरा और धौलपुर में पाया जाता है। ठीक है, और जो सफेद पत्थर है वो शाहजहां ने लगवाया, और उस सफेद पत्थर को राजस्थान के मकराना सिटी से मंगाया गया था। ठीक है, आइए। का बना हुआ है, फ्रेश होने के बाद सामने वाले पार्ट में आना है सामने। ठीक है, आइए साहब आगे। ये सफेद पत्थर है ना, ये शाहजहां ने लगवाया। ठीक है, तो शाहजहां का लविंग नेम, बचपन का नाम था खुर्रम। इनकी पत्नी थी मुमताज। तो इनके 14 चाइल्ड थे, 14 बच्चे थे। 8 बच्चे नेचुरली डेथ से एक्सपायर हो गए, बचे 6 बच्चे, जिसमें 4 बेटे 2 बेटियां। 4 बेटे दारा, सूजा, मुराद, औरंगजेब। 2 बेटी रोशनारा और जहानारा।
ये सामने गोल्डन वाला महल देखिए आप लोग, ये जो दुल्हन का पालकी होता है ना, डोली, उस डिजाइन में बना हुआ शाहजहां की छोटी बेटी रोशनारा का बेडरूम है ये। ऊपर अभी ब्रास है, दैट टाइम सोना होता था, अंग्रेज लोग इशारा निकाला, लूटा, यहाँ से ले गए। ये नीचे आप जो गार्डन देख रहे हैं इसको अंगूरी बाग कहते हैं। यहाँ जहांगीर अपने खाने के लिए अंगूर का खेती किया करते थे, ठीक है। और ऊपर में जितने भी डोर्स आप देख रहे हैं, ये मुगल राजाओं का हरम होता था। ये पूरा एरिया एक जोधा अकबर सीरियल आता था उसमें दिखाया गया है, बट इसका शूटिंग नहीं, सेट बनाया गया था सर, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ समय कम है, 2-3 मिनट का समय है। जिस किसी भाई बहन को फोटो लेना है फोटो ले सकते हैं। यहाँ ऑथराइज गवर्नमेंट फोटोग्राफर भी है, ठीक है। बड़े साइज का फोटो होता है 60 का, पैसा भी नहीं, गाड़ी पर रिटर्न होना है तब देना होता है, ठीक है। जिसको भी लेना है ले लो। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। ऊपर देखो 4 रिक्स लगे हुए, 4 रिक्स। इसके ठीक नीचे उनके बेड, और बेड को कवर करने के लिए पर्दे लगते थे, जैसे हम लोग पहले मच्छरदानी लगाते थे, ठीक है। ये कॉर्नर में देखो येलो डिजाइन है, ये अभी पेंट है, लेकिन राजाओं के समय में प्योर गोल्ड लगा हुआ था, प्योर गोल्ड। ऐसा ही प्योर गोल्ड लगा हुआ था, इसके ऊपर नहीं था, ठीक है, इसके नीचे था। लेकिन यहाँ भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने अटैक किया, आग लगाया गया, गोल्ड मेल्ट हुआ, कलेक्ट किया और यहाँ से इसको ले गए। ये तभी से काला काला हो रखा है, ठीक है। और रिमेम्बर मुगल टाइम पर दरवाजे में केवल पर्दे रहते थे, ऊपर देखो छोटे छोटे लोहे के रिक्स साइड से इधर और इधर, ये पूरे रूम को चारों साइड से ऐसे पर्दों से कवर रखा जाता था, दरवाजा नहीं रहता। ये बेटे ये हाइट पर इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि गर्मियों के दिनों में हीट ना पकड़े, जबकि मुगल राजाओं का हाइट लगभग 5 फीट समथिंग, कोई ज्यादा टोल नहीं हुआ करता था, 5 फीट केवल, ठीक है। अब ये देखो, ये सामने वाला विंडो देखिए आप लोग, विंडो के ऊपर वाला पार्ट देखो, ये जो हल्का हल्का येलो शेड है, ये सनलाइट है, यानी ट्रांसपेरेंट मार्बल है, क्वालिटी है मार्बल का। ये राजस्थान के मकराना सिटी से ब्रिंग किया गया, बेटर क्वालिटी है, ठीक है। यही क्वालिटी का मार्बल सेम ताजमहल में लगा हुआ है, इसीलिए ये ज्यादा साफ नहीं करते हैं। ज्यादा साफ करोगे पत्थर का क्वालिटी खराब होगा, दूसरा पत्थर लगाएंगे और लगेगा, इसलिए ज्यादा बिल्डिंग से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये रहता था शाहजहां और मुमताज का बेडरूम। थोड़ा सा आगे बीच में शाहजहां और मुमताज का बेडरूम, साइड से बड़ी बेटी जहानारा का बेडरूम, सेम पालकी डिजाइन में बना हुआ, लुक लाइक सेम पैलेंक्यूम, पालकी सेम, ठीक है। ये राजस्थानी कल्चर है जो भी आप अंदर से देखेंगे, ठीक है। फिर ताजमहल को छोटा बड़ा करके दिखाते हैं। দেখা যাচ্ছে, हाँ ताजमहल है ना, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে তাজমহল, ওই যে তাজমহল। पानी कम है, आज से 500 साल पहले ये यमुना रिवर इस किले के बराबर से बहा करती थी, रोड नहीं रहता था, इतना पानी रहता था। अब पानी कम क्यों है, कई कारण है, जगह जगह डैम बनाना, बारिश कम होना, नदियों को बांटा जाना, इसलिए पानी कम है। अब आप सभी लोग देखो नीचे देखो, ये फर्स्ट वाला खाई है जिसपे पेड़ लगा हुआ है भैया, सॉरी, ये अकबर ने बनवाया, इसमें शेर चीते जंगली जानवर रखे जाते थे पहले वाले में भैया, और आगे वाले में मगरमच्छ, जिससे इस किले का सबसे सुंदर पार्ट है। ये शाहजहां का जेल है, जेल। तो औरंगजेब ने राजा बनने के लिए अपने 3 भाई दारा, शुजा, मुराद को मारा, हत्या कर दी गई, और अपने पिता शाहजहां को 8 साल के लिए अंदर में हाउस अरेस्ट किया गया। जब शाहजहां का एज काफी अधिक हुआ, उनका आई साइट वीक हुआ, तो उनकी बड़ी बेटी ने ये सामने जो ब्रॉड वाला दीवार है ना, इस दीवार के ठीक बैक साइड में एक होल कराया,
इसमें बड़ा सा डायमंड हीरा लगवाया और उसी हीरे में शाहजहां को ताजमहल का रिफ्लेक्शन नजर आता था। तो 8 साल शाहजहां मुमताज की याद में उसी हीरे में ताज के रिफ्लेक्शन को देखा करते थे। यही शाहजहां मर गए, बाद में ताजमहल के अंदर उनको दफनाया गया। ये अंदर में गुलाब जल के लिए फाउंटेन रहता था, ठीक है। ये फ्लोर पर देखो, ये बड़ा बड़ा चेक बना हुआ है, ये यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे। यहाँ शाहजहां अपने टाइम पास के लिए मुगलिया गेम जोकर खिला करते थे, लाइके लूडो। बट यहाँ बोटीज नहीं, उनका लेडीज सर्वेंट खड़ा होता था, उनको मूव कराया जाता था। यानी ऑल काइंड ऑफ लग्जरी प्रिजन, शाही जेल है, ठीक है। इसमें आप जो वर्किंग देख रहे हो ना सर, वर्किंग, इस वर्क का नाम है पेट्राडूरा। पेट्राडूरा एक इटालियन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि स्टोन को कटिंग करना और कलरफुल स्टोन उसमें फिट करना। तो पब्लिक लोग इस वर्क को डैमेज करता है, इसलिए गवर्नमेंट ये अंदर एंट्री बंद करता है। और ये देखो सर, ये फर्स्ट वाला डोर है ना, ये फर्स्ट वाला, ये शाहजहां के टॉयलेट वॉशरूम है, बेसमेंट में क्लोज है। तो आगे वाले 2 दरवाजे वो रानी मुमताज का रॉयल बाथरूम होता था, उसको सी स्मेल कहते हैं। ये पूरा ग्लासमेट है, अगर आप इसमें एक जगह खड़े हो जाएंगे लाखों जगह नजर आएंगे। जलती हुई कैंडल्स लेकर खड़े होते हैं, ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे झिलमिला रहे। बट ये भी पब्लिक ने खराब किया, डैमेज किया, इसलिए गवर्नमेंट के अंदर एंट्री बंद की। इसी बाथरूम से एक रास्ता अंडरग्राउंड यमुना रिवर जाता है, यानी रानी की चॉइस है अपने बाथरूम में स्नान करना, बाथरूम में यमुना रिवर जाना, यमुना रिवर। मुगले आजम मूवी है, उसमें एक गाना फिल्मा है, प्यार किया तो डरना क्या। जो एक जगह खड़े होकर डांस करती है, कई जगह नजर आती है, वही वाला है। जितने भी हिंदुस्तान के किले सबसे सुंदर चीज है। इसका ग्लास सीरिया कंट्री के हलब शहर से मंगवाया गया था, जिसकी साइनिंग आज तक बरकरार है। बट ये पब्लिक लोग स्ट्रेस करता है, डैमेज करता है, इसलिए बंद कर रखा है, ठीक है। तो ये तो रहा सर मुगल राजाओं का रहने का घर। अब आपको दिखाएंगे इनका फाइनेंशियल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, ठीक है। तो ताज का यमुना का बहुत सुंदर व्यू आता है, वहां से फोटो लेना आप लोग, ठीक है। आइए चलिए साहब, इधर से और नीचे वाले डोर्स के अंदर में एक मार्केट लगाते थे, मीना बाजार। यहाँ की रानियों के लिए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह मिला करता था, ठीक है। जहाँ आप लोग खड़े हो इसके ठीक नीचे उनका आरबीआई ट्रेजरी पैसा बनता था, उसको टकसाल कहते थे, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन, ठीक है। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, काबुल सब एक होता था, सारी करेंसी यहाँ बनती थी, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती थी। ये मेन ब्रांच होता था इसके ठीक नीचे सर। ये सामने वाला पार्ट है दीवाने खास, कैबिनेट मीटिंग होता था सर। मौसम अच्छा होगा मीटिंग बाहर, मौसम खराब है मीटिंग अंदर। अब आप देखो अपने बैक साइड में सामने एक रेलिंग के अंदर ब्लैक स्टोन रखा हुआ, देखिए। ये जो स्टोन है ना, ये स्टोन आउट ऑफ कंट्री बेल्जियम, बेल्जियम से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा लाया गया। तो वहाँ किंग जहांगीर, उनका मिनिस्टर ठीक सामने व्हाइट स्टोन पर। और जो वीआईपीज लोग होते थे वो डाउन साइड में बिठाए जाते थे। तो बाहर से ब्रिटिश लोगों ने अटैक किए, कैनन बॉल, तोप के गोले फेंके गए। एक तोप का गोला काले वाले पत्थर के बीच में लगा, पत्थर क्रैक हो गया। दूसरा तोप का गोला इसी पत्थर से बाउंस होकर, और ये देखो सर, ये जो लास्ट में पिलर है ना, लास्ट वाला पिलर, पिलर के टॉप साइड में भी देख लेना होल हो रखा है, होल। यानी सेकंड कैनन बॉल ब्लैक स्टोन से बाउंस हुआ, यहाँ लगा, ये होल हुआ और यहाँ से क्रैक हुआ। ये जो काला पत्थर है इसका नाम है कसौटी, बांग्ला में कोष्टी कहते हैं। तो कसौटी होता है जो गोल्ड स्मिथ सुनार लोग होता है, सोना घिसकर चेक करता है सोना असली है नकली है, ठीक है। तो वहाँ जहांगीर बैठकर सोने जैसा प्योर न्याय किया करते थे, कहते ना कसौटी पर खरा उतरना, ट्रू जस्टिस लाइक ए प्योर गोल्ड, ठीक है। अब देखो आप लोग फोटो ले रहे हैं, फोटो ले लेना वहाँ से पत्थर से शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते हैं। इस पत्थर से এই যে পাথরটা ফাইটা গেছে, আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে তাজমহল, ওই আর এই পাথরটা আনা হয়েছিল বেলজিয়াম থেকে। শাহজাহান চাইছিল মমতাজের জন্য তাজমহল বানানোর পরে একটা এই পাথর দিয়ে, কালো পাথর দিয়ে আরেকটা তাজমহল ঠিক নদীর অপোজিট পাশে বানাইতে, কিন্তু ওইটা তার ছেলে তাকে বানাইতে দেয় নাই। আর ওই যে বললো যে উনি মাত্র একটা লোহার গোলা আইসা এটাতে লাগছে, ফাটছে, ফাটার পরে সেকেন্ড লোহার গোলাটা এটাতে লেগে আইসা ওই যে পিলারে আইসা লাগছে, ওইখানে একটা ক্র্যাক হয়েছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে। ये दीवाने आम है जनता दरबार। तो राजा ऊपर बैठेगा, रानियां इन दोनों बड़ी वाली खिड़कियों के अंदर में, नीचे व्हाइट स्टोन पर उनका मंत्री। यहाँ वीआईपी लोग
जो पब्लिक होता था वो मैदान में। अब जिस किसी पब्लिक का कोई भी शिकायत होता था उसी को राजा के पास बुलाया जाता था। राजा उनकी शिकायतों को सुनकर उनके साथ न्याय किया करते थे। दीवाने आम, जनता दरबार, ठीक है। और अपने बैक साइड में देखो व्हाइट व्हाइट टॉम्स हैं। ये मोटी मस्जिद है, ये शाहजहां ने बनवाया अपनी नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ आर्मी रहता है, 75% एरिया है इसलिए बंद है, ठीक है। यहाँ कोई प्रेयर नहीं होता, एवरी फ्राइडे ताजमहल में होता है बड़ा नवाज जिसको कहते हैं जुमे का, ठीक है। और ये नीचे देखिए सर, एक तोप रखा हुआ है नीचे, तोप दिखाई दे रहा है सभी को। ये तोप अभी करीब 7-8 साल पहले जहाँ आर्मी रहता है वहाँ जमीन के अंदर सर्चिंग में पाया गया। ये ब्रिटिश टाइम का तोप है, इसको देखने के लिए यहाँ रखा गया, रिसेंटली अभी पाया गया भी, ठीक है। और इधर देखिए ये सामने कब्र बना हुआ है सर, समाधि इधर, वो दीदी सामने समाधि है। ये जो समाधि है ना, एक ब्रिटिश गवर्नर था, इसका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। सन 1857 में एक लड़ाई हुआ, सिपाही विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे और झांसी की रानी हुआ करती थी। उस लड़ाई में ये मर गया और अंग्रेजों ने इसको यहीं पर दफना दिया। तो पहले मुगल आया, मुगल के बाद ब्रिटिश और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट। आगरा में 3 चीज फेमस है, जानते हैं क्या है? ताजमहल, आगरा का पेठा मिठाई, तीसरा है आगरा का पागल खाना। तो जब ये सन 1857 का लड़ाई स्टार्ट हुआ तो ये जॉन रसल कॉल्विन को सदमा लगा सर, माइंडली डिस्टर्ब हो गया। इसी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आगरा में मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण कराया। विदेशी डॉक्टर आए इसके इलाज के लिए, कुछ समय जीवित रहा, मरा, और वहां से यहाँ लाया गया, यहीं पर दफना दिया। यहाँ इसलिए दफनाया क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का गवर्नर जनरल था, ठीक है। आइएगा, আমরা আছি এখন তাজমহলের মেন গেটে। আমরা হচ্ছে তাজমহলের ভিতরে ঢুকবো। এই যে এখানে যে ছোট 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 দরজাগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা হচ্ছে আপনার তাজমহল যারা বানাইছিল লেবার, তাদের হাউস। আর এই হচ্ছে মেন গেট। মেন গেটের উপরে 11টা, সামনে হচ্ছে মিনার আছে, আমি মিনারটা দেখা যাচ্ছে না সম্ভবত এই দিক দিয়ে, আর পিছনে 11টা মিনার আছে। তাজমহল বানাইতে মোট 22 বছর সময় লাগছিল, এর জন্য হচ্ছে 22টা মিনার বানানো হয়েছে। আর এইখানে আমাদের কোরআনের বিভিন্ন আয়াত লেখা আছে মেইন গেটে, যেহেতু সম্রাট শাহজাহান মুসলিম ছিল। তো আমরা এখন ভিতরের দিকে যাচ্ছি, দেখা যাক ভিতরে কি আছে। এই সেই আমাদের তাজমহল। এটা হচ্ছে দরজাটা একটা ম্যাজিক্যাল দরজা, কারণ হচ্ছে বাহির থেকে তাজমহলটা অনেক বড় দেখা যায়, আর ভিতরে গেলে এটা ছোট দেখা যায়। আমরা আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যাই, অনেক মানুষ, দেখা যাক। এই সেই তাজমহল, এই সেই সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল। সারা জীবন ছবিতে দেখছি, বিভিন্ন পোস্টারে ব্যানারে দেখছি, আজকে প্রথম নিজের চোখে দেখতেছি। অনেক সুন্দর। এই সৌন্দর্য আসলে ভিডিওতে প্রকাশ করার মতো না, আর ভিডিওতে হয়তো অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এটা বিশাল বড়, হিউজ বড়। আর এই যে এটা চারপাশে 4টা গম্বুজ আছে, এই গম্বুজগুলো একটু হেলানো, যাতে কোনোদিন ভূমিকম্প হইলে এটা তাজমহলের উপর না পড়ে, এর জন্য এটা এরকম করে করা হয়েছে। আর এটার পাশে একটা মসজিদ আছে বা পাশে, আর ডান পাশে একটা মিউজিয়াম আছে। চমৎকার সুন্দর, চমৎকার সুন্দর, কি অদ্ভুত সুন্দর এই তাজমহল। মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমার অনেক জোস। শুধু যে তাজমহল তাই না, তাজমহলের এই যে রাইট সাইডে একটা আছে, আর লেফট সাইডে এটা মসজিদ, রাইট সাইডে এটা কি আমি সঠিক বলতে পারতেছি না। খুবই সুন্দর। তো অবশেষে আমরা তাজমহল ঘুরলাম, ভিডিওতে দেখবেন তাজমহলে। তো আপনারা যারা আসতে ইচ্ছুক অবশ্যই আগ্রাতে তাজমহল দেখে যাবেন। আর আগ্রাতে শুধু তাজমহল না, আগ্রাতে হচ্ছে আপনার আগ্রা ফোর্টও আছে, ওইটা হচ্ছে সম্রাট শাহজাহানের বাসভবন, ওইটাও পর্যাপ্ত পরিমাণ সুন্দর, আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগছে। তাজমহলে একটা শুধু দেখার তাজমহল, ওইখানে অনেক কিছু আছে। সবাই আসবেন, অনেক সুন্দর জায়গা, অনেক সুন্দর জায়গা। আপনার ছবি থেকে বাস্তবে অনেক বেশি সুন্দর, অবশ্যই আসবেন।